بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوورسیز ود راحت راؤ. آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ کرنٹ ایشو پہ ہے. ایک تو جو انٹرنیشنلی جو یو ایس میں جو جارج ہے اس کی وفات کے بعد جو ہنگامے اور اسٹرائک ہے اس پر، اور دوسرا یہ کہ سنتھیا ایک امیرکن بلاگر ہے، ایک عام ٹورسٹ آئی تھی اور اس نے کتنی ہائی لیول تک رسائی حاصل کی، اور اس کے بعد وہ جو الزامات لگا رہی ہے سینئر پولیٹیشین پر، اس پر ہے. ابھی ہم لائن پر لیتے ہیں پاکستان کے مایہ ناز ایڈوکیٹ ان اسلام آباد، جو کہ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں اور اسلام آباد بار ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں، راجہ ذہن محمود صاحب، جو اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. ان سے ہم اس بارے میں قانونی رائے لیتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور یہ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. ہیلو جی وعلیکم السلام. راجہ صاحب، یہ جی راؤ صاحب سوال. السلام سر، یہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. یہ جو سنتھیا ایک امریکن لیڈی ہے، یہ جو الزامات لگا رہی ہے سینئر پولیٹیشین پر 10 سال بعد، اس کی قانونی کیا حیثیت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز جب اب ایک بہت مدت کے بعد اس کو ہائی لائٹ کیا جائے یا لائم لائٹ پہ لایا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی ہے یا کوئی الٹیریئر موٹیو ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ وقوع ہوا اور اس کے بعد 2011 سے لے کے آج تک وہ انتظار کرتے رہے اور یہ بہانے یہ کرتے رہے کہ جی کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو میں نے یہ بات نہیں کی. تو اب امریکہ کے اور پاکستان کے حالات کون سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، صرف اور صرف کسی کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے. اور یہ ٹوٹلی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تھا تو یہ اس نے اور صرف ایک جو ریسپیکٹیبل اور یوسف رضا گیلانی he was enjoying the post of prime minister of foreign minister رحمان ملک صاحب رہے اور یہ سارے رہے ہیں. تو ان کو اس سٹیج پہ ان کا کہنا جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اصل میں یہ امریکہ میں کامن پریکٹس ہے کہ لوگ 30 سال بعد 20 سال بعد بھی جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، اور وہ ان کا کلیم مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ایک ان ملکوں میں کامن پریکٹس ہے، اور ایون کہ 30-40 سال بعد بھی وہ کلیم کرتے ہیں. تو لیکن پاکستان میں تو کیونکہ اپنے ہمارے قوانین ہیں اور آپ قانون کے میری بات سنیں آپ، یہ جو بات کوئی بھی چیز کریں گے وہ اپنی افادیت جو ہے یا اس کی جو ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن ایکٹ بھی ہے پاکستان میں. میں بھی قانون کا چھوٹا سا طالب علم. جو جی قانون میں اگر کوئی مثال کے طور کوئی ایسی بات تھی ایف آئی آر کر وفاتی، اب بھی کوئی بھی جو ایویڈنس ہے وہ اسٹیبلش کسی طور پہ نہیں کر سکتی ہیں. میں اسی لیے اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ اس لیٹ اسٹیج پہ جب بھی جائے گی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ محرک یہ ہے کہ کسی کی سچویشن کو یہ ہوا یوں تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو بے نظیر کی اسٹیٹمنٹ دیے تھے جنہوں نے پی پی نے اس کو ریئیکٹ کیا تھا. یہ پیپل پارٹی کی ظاہر ہے ایک یہاں کی اس وقت لیڈنگ پارٹیز میں سے وہ ہے، تو ان کے لوگوں نے اس کو کیا کر کے مجھے جو انفارمیشن ملی ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کے پیپل لائف فورم کے، انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی جو اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جب کمپلینٹ کیا تو یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ میں اس کا جو جس میں اب کسی طور پہ حقیقت نہیں ہے. اور اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. صرف اور صرف یہ ضرور ہوگا یہاں پہ مطلب ہماری مختلف پارٹیز ہیں یہ اس کو جو ایک دوسرے کے خلاف یوز تو کر سکیں گی، لیکن اس خاتون کو اگر یہ ہو اس کو یہ فیس کرے تو ہوا اسٹوڈنٹ وہ آئے پاکستان میں آ کے اس کو کنٹیسٹ کرتی. قانوناً اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں رہا اس بات کا. اتنے دیر کے بعد یہ جو ہے ایسا ایکوزیشن یا الزام لگانے کا کوئی جواب نہیں اس کے پاس. تو آپ کہتے ہیں کہ قانونی لحاظ سے شی از ناٹ ایلیجیبل ٹو
according to the Pakistani law. पाकिस्तानी लॉ में हमारे हाथ पे ऐसा हो सके कि रेप किया तो रेप के खिलाफ पर्चा होता है ना, ठीक है। यही पर्चे अगर इसको जो प्रॉम्प्ट लॉज एफआईआर होती है उसमें, यानी हमारा यहाँ जो कानून है राहुल साहब, उस पे ये है कि जितनी डिले एफआईआर में होगी उसमें उतनी ही मैनिपुलेशन और चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं जो प्रॉम्प्ट लॉज एफआईआर होती है उसमें सदाकत के अंतर ज्यादा होता है। अच्छा, जितना डिले होगा एफआईआर में वो आप यानी मैं लोग घंटों को भी मैटर करते हैं कि जनाब अगर किसी का बकुआ, अगर इसको रेप इस्लामाबाद में हो रहा है तो ये जाके अमेरिका में बता रही है कि जो मुझे रेप किया, और वो भी 2011 के बाद से बाद 11 साल के बाद मुझे याद आया, ठीक है ना जी। ये कोई भी आम बंदा जो देन रखने वाला, जो दिमाग रखने वाला बंदा, वो कभी भी इस बात को मानने के तैयार नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं ये कभी भी नहीं मानता कि ऐसी बात हो, अगर कोई भी हो तो ये इसकी कंसेंटिंग पार्टी होगी, ठीक है। आज इसको क्यों याद आ गया इस चीज के बारे में? अच्छा, आप इसको टाइम बार्ड की वजह से कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन टाइम पार्टी की वक्त गुजर जाने के बाद, देखिए जी, वक्त गुजर जाने, वो अपनी जो चीज है ना, वो जो क्रेडिबिलिटी जो है, मैं वर्ड जो है वो है क्रेडिबिलिटी, जी के उस जो ये स्टांस लेना चाह रही है उसकी जो सदाकत है वो सदाकत नहीं रहती इसमें। अगर ये उसे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी करती है तो फिर भी कहा जा सकता था कि ठीक है जी, या ऐसे हालात होंगे कि कोई बंदा मजबूर होता ये नहीं कर सकता। लेकिन आप ये कहना 11 साल बाद, ये कहना कि जनाब क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के हालात ठीक नहीं थे तो लिहाजा मैं वो एफआईआर नहीं करा सकी थी। अब मैं ये एक्यूज कर रही हूँ कि जनाब मुझे ट्रांस खान ने ये इस तरह किया, मेरे साथ किया। मतलब मैं ये समझता हूँ कि किसी की पर्सनैलिटी को मिलाइन करने के लिए एक गंदी किस्म की ये अटेम्प्ट की है। एक जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी शहरी होने के ऐसे एक कानून का तालिब इल्म होने में ये गलत बात है जी, बिल्कुल ये गलत बात है। यानी कि आप इसको नहीं मानते? मैं नहीं मानता इसका इल्जाम को, कि मैं केस को मैं मुस्तरद करता हूँ इसको कि ये बिल्कुल ये गलत बात है। किसी की आप इसको इनको कोई ऐसा डाउट जो है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते, इसका मतलब है? मेरी बात सुने, 11 साल के बाद तो ये कहे कि मुझे फलां ने रेप किया था, तो आप उसको जस्ट हाउ यू विल, तो आपके कहने से तो ये नहीं हो जाएगा। असल में ये अमेरिका में ऐसा हो जाता है, 30 साल बाद भी अदालत। मेरी बात सुने, वो ये जो उसने अरेस्ट किया है वो पाकिस्तान का किया हुआ है, जी ठीक है। तो जहाँ बकुआ हो उसका कानून अप्लाई होता है, अमेरिका कानून नहीं अप्लाई होगा। ठीक है सर, वो नहीं, मैं सारी बात समझता हूँ आपकी, हम भी आपकी तरह तालिब इल्म है, आप हमारे सीनियर भाई हैं, हम आपके पेशे से ही वाबस्ता हैं। लेकिन अब ये मसला है कि अब लोगों को तो मौका मिल गया कि जो मुखालफिन है, नहीं तो इसके लिए मुझे ये समझ आई है कि मेरा ख्याल है कोई भी जो है एक रिस्पेक्टेबल आदमी जो है, ज़ाहिर है लोगों ने जिनके नाम दिए, मैं इसमें ये बात नहीं लेने का, जिनके नाम जिनके ने लिए हुए वो अपना हक महफूज रखते हैं, और मेरा ख्याल है वो इसके खिलाफ डैमेजेस का फुल प्रूफ फाइल करेंगे, डिफेमेशन का जो है। अच्छा, तो आपके ख्याल में, या वो वैसे भी कानूनन ये है कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू प्लेड गिल्टी, लाइक या प्रूव गिल्टी। तो हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे, हम तो ना, मैंने उनकी वीडियो चलाई है उसकी, तो मेरी बात में ये कहते हैं ना, जो बंदा कोई अरेस्ट करता है वो प्रूव करता है। या अगर इसने किसी पे इल्जाम लगाया है तो ये इसकी जो बारे सबूत है वो इसी के पास है, और ये इसको सबूत है जो है मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। क्या ख्याल है जी? मैं ये कह रहा हूँ ना जी, इसके पीछे तेरे मोटिव क्या है? मुझे राव साहब जी मुझे सुन रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 11 साल के बाद, 10 साल के बाद जी बकुए को आप उठा आ ले और कह दी कि मुझे फलान ने ये किया
जी जी, नहीं जी, बड़ा ही अच्छी आपने आपने तो कानून में ये है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो राजा साहब आपने तो बगैर फीस के उनका मुकदमा लड़ दिया है। मैंने कहा राजा साहब आपने आवाम की अदालत में बगैर फीस के ही मुकदमा लड़ दिया आपने उनका। साल के वक्त के बाद अकादमी जी जी जब कोई उठता है तो इसके पीछे कोई ना कोई जी जी, राय साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है राय साहब, जी जी, अब आइए राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखो जी, ये हमारे साथ राजा ज़ाहिर साहब थे, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने बड़ी यानी कि कानूनी नुक्ते भी और इखलाकी नुक्ते भी इस जो सिंथिया ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर दिए हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं वैनकूवर के, दिल अपना पाकिस्तान के होस्ट जनाब इंतखाब साहब को लाइन पर लेने पर उनसे हम पूछेंगे जो जो अमेरिका में सूरत हाल है इस वक्त जॉर्ज की डेथ के बाद, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता कि वहाँ पर दिन दिहाड़े पुलिस वाले 10-10, 20-20 लोगों को मार देते हैं और कैमरे की आंख भी देख रही होती है। तो ये कब ऐसा इनकलाब आएगा हमारे मुल्क में, क्योंकि जो है एक आदमी की डेथ हुई है और पूरा अमेरिका और पूरा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, पूरी दुनिया में जो है वो, और उन लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और अगर लोग सड़कों पर ना आते तो उनको गिरफ़्तार भी ना किया जाता। तो असल में हम खुद कसूरवार हैं, आवाम, पुलिस का या हुकूमतें कुछ नहीं करती। अगर जॉर्ज के लिए भी लोग अब सड़कों पर ना आते तो उन पुलिस वालों को कभी गिरफ़्तार ना किया जाता। तो इसी सिचुएशन के बारे में एक शेर है कि एक वो हैं कि जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं कि ली सूरत अपनी ही बगाड़। तो नाज़रीन, अब हम इंतखाब साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है राज साहब, कैसे हैं जी आप? जी सर, आप इंतखाब भाई कैसे हैं? इंतखाब भाई आप कैसे देखते हैं ये जो सूरत हाल है जो अपना अमेरिका में, और इस किस्म की सूरत साहिवाल में देखें लोगों को जो साथ जो सलूक हुआ, और उसके साथ जो है और लाहौर में मॉडल टाउन का सानिया है, और इतने अनगिनत जो हैं केसेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक ही शख्स की जान ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। जो ये हुआ एक नस्ली पत्रकार जो हुए वो उसमें अमेरिका के नस्ली फसादात में ये आज एक दिन की बात नहीं है। वो बहुत अरसे से इसी तरह के कत्ल होती है अमेरिका की जेलों में। 75% से ज्यादा हिस्पैनिक और काले हैं। नस्ली तासुब बहुत है वहाँ पे, और खासतौर पे पुलिस उसकी एब्रीवेशन मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस की जो एब्रीवेशन में वो उसका काम है कि लोगों की इमरजेंसी में हेल्प करना। तो पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ना कि आपको पे फायर करके मारने की, पुलिस मुकाबले करने की, एक सड़क पे जस्टिस करने की। तो ये आप जैसे आपने अभी बात कर रहे थे उन मुल्कों की जहाँ पे ब्रिटिश रूल रहा है, उनमें खासतौर पर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, वहाँ पे, और या इंडिया सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान जब बन गया, तो पुलिस का रोल वही रहा है कि लोगों को वहीं पे जजमेंट करके मारना या उनको पॉलिटिकली मकासद के लिए उनके खिलाफ पर्चे कटवाना, काटना, खुद से काटना, FIR
چھوٹے سوری یہ بہت بڑے پیمانے کے ہیں چیزیں جو کہ نظر آ گئی میڈیا پہ. نہیں وہ ریکارڈ ہو گیا نا, وہ ریکارڈ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اچھا اور دوسری بات انتخاب صاحب, اگر لوگوں یہ کریڈٹ لوگوں کو جاتا ہے, اگر لوگ سڑکوں پر نہ آتے تو وہ لوگ نہیں یعنی کہ اریسٹ ہونے تھے پولیس والے. یہ لوگوں کی اندر وہ ہے, یعنی کہ قرض ہے, لوگوں کے اندر درد ہے, لوگوں کے اندر فیلنگ ہے, لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے وہ کہ ہماری قوم میں ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جو سائیوال والے لوگ مرے ہیں, مال ٹاؤن والے لوگ مرے ہیں, وہ 80% ایسے لوگوں کی آبادی 80% ہے, یعنی کہ جو مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس لوگ زیادہ ہیں پاکستان میں, تو وہ 80% لوگوں میں سے 10% لوگ بھی نہیں باہر آئے نا. اگر 1% بھی آئے تھے تو وہ انصاف ہو جاتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس میں ایک جنگل کی مثال دیتا ہوں. آج کل یہ بہت ساری جنگل کی ویڈیوز بہت اوپن ہے, لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شیر کا 2-3 شیر ہوتے ہیں اور پورا ایک بھینسوں کا. میں صحیح بتا رہا ہوں. نہیں میں نے دیکھی ہے, لیکن اس میں ایک آپ نے یہ بھی دیکھی ہوگی کہ اگر ایک پلٹ کے آتی ہے تو وہ پھر شیروں کو بھی آگے لگا لیتے ہیں. ایک کو نہیں, وہ ایک کو, یہی ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. جو سامنے آ جاتا ہے پولیس کے وہ کرمنل ٹھہرایا جاتا ہے. عام پبلک کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں 90% عام لوگ جو ہیں, ایون وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی, ان میجورٹی ہونے کے باوجود بھی, ان میں سے کوئی 2-4 آدمی باہر نکل کے آتے ہیں. جیسے ماڈل ٹاؤن والا کیس ہے, اس میں وہ کتنے لوگ ہوں گے, 15-16 مار دیے تھے. وہ جو پریگننٹ عورت کو مار دیا, منہ میں گولیاں مار دی ان لوگوں نے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پورا پولیس کے وہ بندے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں یہ قتل و غارت کی تھی, اور اس کی وجہ جو بھی تھے وہ ان پہ بھی میں آؤں گا, ان سیاستدانوں پہ بھی آؤں گا اور ان مذہبی لیڈروں پہ بھی آؤں گا جن کے وہ کرنے پہ وہ لوگ بے قصور مارے گئے پولیس سے. اچھا یہ جو لیڈر اور جو وہ تھے پولیس والے جنہوں نے مارا اور پولیٹیشین سب بچ گئے, 16 بندے مر گئے. تو وہ ملک میں جب تک ڈراسٹیکلی قانون چینج نہیں ہوں گے, جس میں کہ اگر پولیس والے کو امریکہ میں تو اتنے شور مچنے کے بعد ہوا ہے, جب ابھی باڈی کیمپ بھی لگ گئے, جس ملک میں شراب کا شہر بن جائے, جس ملک کا پاؤڈر کا ڈرگ کا وہ بن جائے, ٹالکم پاؤڈر بن جائے, وہ ملک چینج نہیں ہو سکتا. میں اس میں ایک کلچر ہے جیسے رانا ثناء اللہ ہے, وہ اگر آپ ان کی باتیں سنیں, یہ میں ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا, اس طرح کے لوگ جب کبھی رانا ثناء اللہ پہلے بھی پارٹی میں تھا, اب ادھر آ گیا, اور یا شیخ رشید جو ہیں وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. میں کیونکہ پی ٹی آئی میں ہوں, لیکن مجھے یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی آپ پارٹی پالیسی یا وہ کیوں بیان کر رہے ہیں حکومتی پالیسی پبلک میں آ کے. شہباز شریف کو بھگوا دیا, تو بات کہنے کا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ مخبر ہیں انہیں پارٹیوں میں. اور اسی طرح ایک طلال چودھری ہے, کبھی وہ کاف لیگ میں تھا, وہ بھی بہت بولتے ہیں. طلال چودھری ہو گیا یہ اپنا, یہ اب تو مجھے جو موجودہ سیٹ اپ بھی ہے وہ بھی دیکھیں باریاں لی ہوئی ہیں انہوں نے. پہلے پیپل پارٹی کو تھی, مشرف کے بعد پھر وہی سیاستدان جو ہیں 10 سال بعد دوبارہ عمران کے ساتھ آ کے مل گئے. تو مجھے تو فوج سے مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, نہیں فوج کا نام نہیں لیتا میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ. آپ نے پاکستان بھی جانا ہے, ایسے نہ کیا کرے گا. آپ کے ابو بھی فوج میں تھے. وہ سنیں نہیں, میں بات سنیں, میری پوری بات سنیں. میں بلکہ وہاں پہ امیگریشن افسر پہ بھی اسے ڈانٹ کے آیا تھا کہ وہ آدمی اپنا کام نہیں کر رہا تھا, اور میں کھڑا ہوا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک میں ایک پارٹی بن جائے, لیٹس پٹ اٹ دس وے. میں بہت بڑا حامی ہوں, میری فیملی میں فوج کے بندے ہیں, میں ان سے بڑا, اور فوج جو لڑ رہی ہے فوج معاہدوں پہ, یہ بہت بڑا کام کر رہی ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں میں ان کا اتنا عمل دخل ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کام سیدھے کیوں نہیں ہو رہے. اگر عمران خان اور اس کے چند لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ
कईयों को सजाएं हो चुकी होती हैं, अभी तक कईयों को सजाएं क्यों नहीं हो रही? आप समझ रहे हैं बात को? मैं समझ रहा हूँ सर। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी कोरोना की भी सूरत हाल है, इंतखाब साहब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बड़े हालात ख़राब है। वो कोरोना की सूरत हाल उस पर ये मैं बात करूंगा कि हम लोगों ने किसी भी चीज को सीरियस नहीं किया, चाहे वो बीमारी हो, चाहे अपने रस्म रिवाज हो, अपना मजहब हो, अपनी जिंदगी हो। वो उस कौम को मैं सोचता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी हूँ, मैं आपकी तरह जितना वतन जितनी पोस्टें आप पाकिस्तान के लिए लगाते हैं, जितनी मैं लगाता हूँ, मेरा ख्याल बहुत कम लोग लगाते हैं, बल्कि मेरे तो प्रोग्राम का नाम दिल अपना पाकिस्तान। तो क्या बात है जनाब, आपको तो क्या बात है जनाब, क्या बात है जी। तो वो तो हम कनाडा में बैठ के आप देखें, मैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस के मुंह से निकलवा देता हूँ दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। क्या बात है, तो क्या इतनी मोहब्बत है हमें पाकिस्तान से, लेकिन इसीलिए तो हमें भी आपसे इतनी मोहब्बत है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, यही तो ना, देखे ना। और हमारे आपके टीवी के शो को देखने वाले, सुनने वाले, मैं सबसे यही चाहूंगा कि अपनी मोहब्बत को इसी तरह कायम रखें। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम होगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी आज़ादी अभी तक 3 बड़ी जंगें लड़ के, जिनमें आपको पता है कि पाकिस्तान मैदान जंग बना रहा, हमने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है। तो हमें इस कुर्बानियों को अपनी आज़ादी की सूरत में सेव रखना है, और अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी रन कर सकता है। तो ये हमारी अदालतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये होश के नाखून ले, और ये पुलिस वाले को इन्हें बताएं कि भाई हम अवाम की, यानी पुलिस वाले अवाम की हिफाजत के लिए रखे गए, ना कि उन्हें मारने के लिए। और कोरोना की बात पे हम बात कर रहे थे, वापस जाते हैं उसी पे। कोरोना के लिए ये है कि पाकिस्तान में जो SOPs हैं, अब SOP करते रहते हैं। पाकिस्तान की कितनी पब्लिक है, उसे क्या पता SOP क्या चीज होती है? नहीं, आप यही है कि उनको कहें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें, SOP। हाँ, नहीं, उन्हें रूल और रेगुलेशन जो उनकी जुबान है। अच्छा, एक पर्पसली अवाम को 70% अवाम को अनएजुकेटेड रखा है। अब अनएजुकेटेड रखा है, 3-4 तबके हैं हमारे पास, जो कि एक तो अनएजुकेटेड हो गए, एक मदरसों के पढ़े हुए जो कि हमारे आलिम हैं, लेकिन उन्होंने साइंस की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन साइंस पूरी यूज करते हैं, घड़ी की सूरत में, चश्मे की सूरत में, पेन की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, मशीनों की सूरत में। और एक वो लोग हैं जिन्हें के जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं, और एक वो लोग हैं जो पीले स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो हमारा मुल्क में डिवीजन बहुत है, और उस डिवीजन की वजह से लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है। फिर आपको कल्चर भी, आपको पता है हमारे मुल्क में कल्चर क्या है, ट्राइब्स का कल्चर है, जात पार्टी है, जात बरादरी है, और वो उसमें एक जात बरादरी ने कहा भी इतवा पीपल पार्टी को देना है, तो उस बरादरी ने पूरे पंजाब में सपोज उसी पार्टी को वोट दे दिया कि भाई हमारा एक लीडर ने कह दिया कि इसे देना है। कोई असल में अगर मैं और आप भी वहाँ होते तो हम भी उसी चक्रों में रहना था। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा ने हमें ये बताया कि यार नहीं, ये सिखा दिया, वरना आप भी अपनी बरादरी की झोली में बैठे होते और हम भी अपनी बरादरी के गान गुन गा रहे होते। तो बात ये है कि बेसिक बात ये आ गई SOP से चलिए बात, तो इन्हें SOP जो है वो बताना चाहिए, कि इकदार बतानी चाहिए। हमारे मजहब में तो यार दिन में 10 बार हाथ धोना तो वैसे ही फर्ज है। सही बात है। अब आपकी इजाज़त से हम इंतखाब भाई अकरम वाला साहब को खुशामदीद कहते हैं, और अख्तर नवाज भाई हैं हमारे साथ, और रियाज भाई हैं हमारे बहुत पुराने लोग, माशाल्लाह इंजीनियर हैं, और इसी तरह जो है हमारे साथ राना रमज़ान साहब हैं, फ़ारूक नसीम साहब हैं, इरफान सदीक भाई हैं, ये हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं माशाल्लाह, और रॉ एहसान साहब हैं, और हमारे साथ ये एक हैं, अपना मुझे ऐनक लगानी पड़ेगी मेरा ख्याल है कि यूसुफ हैं कोई, हाँ,
नहीं माशाल्लाह जितने हमारे सबको हम वेलकम करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है इंतखाब साहब से या मेरे से, आप इधर फेसबुक पर टाइप कर सकते हैं, हम इनसे इंतखाब भाई से पूछ सकते हैं, या मुझसे आपने इसी ये जो मौजू है सिंथिया और जो जॉर्ज का है, हमने पाकिस्तान से सीनियर लॉयर क्योंकि ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, इसलिए राजा ज़ाहिद महमूद साहब बहुत सीनियर वकील हैं, उनसे हमने राय ली है। उन्होंने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया है, उसके क्लेम को, और बड़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। हालांकि राजा साहब जो हैं वो पीटीआई के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। अच्छा पता है क्या है, देखिए मसला ये होता है कि पॉलिटिशियंस की और अदाकारों की और मीडिया से रिलेटेड लोगों की पर्सनल लाइफ, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, और जब कंसेंटेड कोई चीज होती है वो आई डोंट नो, वेस्ट में तो यही है कि इवन आप ये देखें वेस्ट में भी बिल कॉस्बी के साथ क्या हुआ, और बड़े बड़े अदाकार बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये फेयर नहीं है कि 50 साल बाद कोई बंदा आके कहे कि यार मेरे साथ ये किया है। इसीलिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये अतिया यूसुफ है हमारे साथ। जी जी अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी जी कि वेस्ट में बिल कॉस्बी और एक और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, मैं अभी नाम याद आ जाएगा मुझे, उसको उन्होंने सजाएं दी हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज करियर। अब आप हैरान होंगे यार ये क्या हुआ कि यहाँ तो वेस्ट देखिए पाकिस्तान में ना हर तरह का कानून चल रहा है। वैसे तो कहेंगे कि यार 47 के केसेस खोल दो, और फिर उसके बाद कहते हैं 80s के केसेस खोल दो सियासतदानों की करप्शन के, लेकिन जो करंट करप्शन है उस पर नजर नहीं है। हाँ, ये अभी अतीक भाई ने हमें ज्वाइन किया है, इनको भी हम वेलकम करते अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह अतीक भाई को भी, इकराम वाला साहब को भी, और दूसरे साहब अगर जिनके नाम रह गए हैं उनको सबको वेलकम करते हैं हम लाइव विद राहत राव बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और खास तौर पे वैंकूवर में हमारे लोग हमें देख रहे हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं। असल में पाकिस्तान से ज़्यादा लोग इस टाइम माशाल्लाह राव हसान साहब हैं, और राना रमज़ान साहब भी पाकिस्तान से हैं, और अतीक भाई भी पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपके व्यूअर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और बात आ रही है अब मेरी नज़र में, देखें जी, जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी उस वक्त तक नेशन पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो औरतों की तालीम बगैर किसी एजेंडे के, इस्लामिक तालीम के साथ साथ दुनियावी और अमूर खानादारी, ये चीज़ें जो है ना वो औरतों को बहुत आना चाहिए, औरतों को लेबर फोर्स से निकालना चाहिए। हमारे गरीब घरानों की औरतें वो गाँवों देहातों से लेके छोटे शहरों में, बड़े शहरों में मासियों के तौर पर काम कर रही हैं। ये काम जो है ना ये बहुत ही मेरे ख्याल में नेशन बिल्डिंग नहीं है। पाकिस्तान में अब कराची जैसे शहर में कुछ तकरीबन 1000 से ज्यादा झुग्गियां बन चुकी हैं। क्या ये वहाँ पे इन वर्कर्स के लिए या जो इनके लिए एक बाकायदा रिहाइश का इंतजाम नहीं हो सकता? ये झुग्गियों में पड़े हुए, इन्हीं को झुग्गियों वालों को सियासी पार्टियां यूज करती हैं, उन्हें बगैर बिलों के बिजली पानी के कनेक्शन दिए होते हैं, गैस के कनेक्शन दिए होते हैं, और यही लोग हंगामों के लिए बाहर आ जाते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा ये नहीं मिल रहा है, और बिल वो नहीं देते, सियासी पार्टियां यूज करती हैं। तो वो जब तक लोगों में एजुकेशन नहीं होगी, माएँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी, और डोमेस्टिक वर्कर्स की जो है उनको भी एक उनके अपने राइट्स का पता हो, और डोमेस्टिक वर्कर को राइट्स का पता है, वो काम करते हैं, लेकिन ये कि वो वहाँ का निज़ाम थ्रू आउट चेंज होने वाला है। अब आप यहाँ पे बीचेस में गया था, आज सरसन बीच पे गया था, वहाँ पे एक गंदगी एक चीज नहीं पता है, वहाँ पे वो भी घूम रहे हैं, लाइफ गार्ड भी घूम रहे हैं, और वो भी अपनी यूनिफॉर्म में है, और हर बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो हमारे यहाँ अपनी ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर काम गवर्नमेंट करेगी, एक ये कॉन्सेप्ट आ गया है। आपके पास गार्बेज फेंका हुआ है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये
इशू है, मैं चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी सुने मेरी बात को। जिस घर के सामने कंस्ट्रक्शन वेस्ट पड़ा हुआ है उस घर के आगे जाके लिख के आए ये गंद किसने उठाना है, और ये जब तक ये स्लोगन नहीं चलेगा ये गंद किसने उठाना है हर एक के घर के सामने, तो आप देखिएगा कि वहां से गंद उठ जाएगा, वहां पे दीवारें भी साफ हो जाएंगी, वहां से गंद भी उठ जाएगा। गलियों में गार्बेज से लेके कंस्ट्रक्शन वेस्ट पड़ा हुआ है, लोग एजुकेटेड भी हैं लेकिन फिर गंद फैला रहे हैं। तो जो लोग घरों में रह रहे हैं उन्हीं घरों में रह रहे हैं, बाहर गंद फेंक देते हैं। तो हमारे माशरे में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं, और ये कोविड-19 जो वो एक हमारे लिए क्लॉक को रीसेट कर गया है। अगर हम इससे रीसेट क्लॉक से फायदा ना उठाएं अभी, देखिए इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया कि $12,000 जो दे रहे हैं, जो एल्डरली हैं, 5 लोग हैं जो कमा नहीं सकते, और उनके लिए बहुत अच्छा काम है। अब उससे पहले जो नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट था उसमें पॉलिटिशियन, एस्टेब्लिशमेंट के लोग और बड़े बड़े पॉलिटिशियन उन्होंने अब पैसे उसमें खाए हैं लोगों से थे, और इंटरनेशनल इदारों से पैसे मिलते थे या गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग होती थी, और अंदर बांटे रेवड़ियां अपनों में वो कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी कम्युनिटी कौम जो है एस्टैब्लिश नहीं होगी। काम करने वाले बंदे जो है ना फिजिकली, उन्हें मेरी नजर में कोई पैसा नहीं देना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें रीट्रेन करें और उनके लिए काम क्रिएट करें। अब गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है एबल बॉडी, जैसे कनाडा में है, एबल बॉडी को यहाँ रीट्रेन करते हैं, उससे किसी को वेल्डर बना रहे हैं, किसी को प्लम्बर बना रहे हैं, वो ट्रेड बने हुए हैं, कोई वुड वर्किंग का काम कर रहा है, तो हर आदमी बाकायदा ट्रेंड है, वो काम को खराब नहीं करते। और एक पाकिस्तान के जैसे ये सनत है इसकी घर बनाने की, और ये बहुत बड़ी सनत बन जाएगी अगर यहाँ पे स्किल्ड वर्कर हो। मुझे याद है 70s में कनाडा की कंपनियों ने सर्वे किया था, तो साउथ ईस्ट एशिया में कराची जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेन लोगों पे मुश्तमिल था। इवन गर्ल्स की जो वर्कफोर्स गई है ट्रेन वो कराची से गई है, उसमें कराची से मिनी पाकिस्तान, उसमें